Good morning, students. I am Komal Baradia. Will teach you today the scope of managerial economics. In the previous lecture, we have seen meaning, definition, functions, and principles of managerial economics. In today's lecture, we will see the scope of managerial economics. Scope of managerial economics. Okay. This topic is also very important from the exam point of view. First of all, we will see the scope of managerial economics as it's a macroeconomics and macroeconomics. I'll draw one diagram. All the students will refer this diagram because it is very helpful while you are writing the answers in the examination. The scope of managerial economics. Scope of managerial economics. In that we have two parts, that is microeconomics and macroeconomics. Okay. Now in the microeconomics, again we have some points, that is theory of demand, second one is theory of production, and production decision, third one is pricing theory and analysis of market structure. Next one is profit analysis and management. Next one is theory of capital. Theory of capital. Economic development, social environment, and last one is political environment. Okay. First point is see, the scope of managerial economics is divided into two parts, that is microeconomics and macroeconomics. Now we have lots of points in microeconomics that where the managerial economic is needed, where its scope arises. Okay. First of all, we will see microeconomics. What is microeconomics? Microeconomics is nothing but it is work on the small level. जो कम लेवल पे इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए इकोनॉमिक्स फॉलो होता है या इकोनॉमिक्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. नाउ टू रिजॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इशू अराइजिंग इन द बिजनेस ऑपरेशन, द वेरियस थियोरीज और प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई हियर. ओके. नाउ इन दैट फर्स्ट वन इज theory of demand. What the theory of demand and supply says us or tell us, the demand theory emphasizes on the consumer's behavior towards the product or service. It take into the consideration the needs, wants, preference and requirement of the consumer to enhance the production process. See what the theory of demand says us कि बाबा prices of the product
कब डिसाइड होगा या डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कब डिसाइड होगा? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड होगा कंज्यूमर के नीड्स, वांट्स और प्रेफरेंसेस पे। यदि कोई चीज़ का नीड मार्केट में है तो वी कैन टेल इट कि इसका डिमांड मार्केट में है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ओनली द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड। सो हियर द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाइज कि मार्केट में स्टडी करना है मैनेजर को, किस चीज़ का नीड्स है, वांट्स है, कंज्यूमर किसे प्रेफरेंस देंगे, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए किस चीज़ का नीड अराइज हुआ है, ये सारा मार्केट एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज सर्व करेंगे मार्केट में। सो दिस इज़ अ थ्योरी ऑफ डिमांड। ओके, नेक्स्ट वन इज theory of production and production decision. This theory is majorly concerned with the volume of production process, capital and labor required, cost involved, etc. It aims at maximizing the output to meet the consumer's demand. See what the theory of production tell us कि बाबा आपने डिमांड एनालिसिस कर लिया है, डिमांड क्या है प्रोडक्ट का, कितना डिमांड है मार्केट में, ये हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट कौन से मटेरियल से हमें प्रोड्यूस करना है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा, ये सारा हम लोग डिसाइड करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन डिसीजन में, जिसमें हम लोगों को देखना है कि प्रोडक्ट कौन सी कॉस्ट पे हमारा इकोनॉमिक रहेगा, सो दैट वी कैन लॉन्च इट इनटू द मार्केट। नेक्स्ट वन इज प्राइसिंग थियोरी एंड एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर। हमने डिमांड एनालाइज किया, फिर प्रोडक्शन एनालाइज किया, नाउ वी हैव टू स्टडी द मार्केट। वी हैव टू स्टडी द मार्केट इन विच पर्पस फॉर डिसाइडिंग आर प्राइजेस ऑफ फॉर द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ पेन, ठीक है, अ इकोनॉमिक पेन और अ रेगुलर पेन। अभी रेगुलर पेन तो आपको 1 रुपी में भी मिल रहा है और 20 रुपीज़ में भी मिल रहा है। इन दैट यू हैव टू फाइंड योर मार्केट रेशियो कि आप कौन से स्टूडेंट्स के लिए, कौन से एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आपका पेन लॉन्च करने वाले हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइसिंग थियोरी। यहाँ आपको प्राइस, डिमांड, सप्लाई, ये दोनों बैलेंस करते हुए आपको प्राइस फिक्स करना है। इसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। ये क्या होता है, यदि आपकी जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई आपका इंटरसेक्ट होता है या मैच होता है, जहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाता है, वो हो जाता है हमारा प्राइस ऑफ द मार्केट। तो ये एक मैनेजर को ही डिसाइड करना पड़ता है, उसे ही पूरा स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एनालिसिस। Profit analysis and management. The organization works for the profit, therefore they always aim at profit maximization. It depends upon the market demand, cost of output and competition level. See, हर कोई यदि अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लॉन्च कर रहा है तो उसका सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट एम क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर कोई पर्सन यदि मार्केट में अपनी कोई सर्विस लॉन्च कर रहा है या कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसका सबसे पहला एम क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसे क्या करना है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट किस पे बेस्ड रहेगा हमारा, सबसे पहला रहेगा आपका डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में। नेक्स्ट वन इज़ आप किस तरह का क्वालिटी देते हो और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। आप अभी मार्केट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस इफ़ यू गो इन द सर्विस सेक्टर एंड यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, तो आप देखेंगे आज आपने स्टार्ट किया, दूसरे इन द नेक्स्ट डे, इन द क्विक नेक्स्ट डे the next one will start to provide the services. So this is called as cut throat competition, जहाँ पर आपको आपका प्राइस एनालिसिस भी करना है और डिमांड एनालिसिस भी करना है to survive in the market. Okay, next one is next point is theory of capital. Theory of capital. Capital is the most critical factor of the business. This theory prevails a proper allocation of the organization capital and making investment. See,
थियोरी ऑफ कैपिटल इज़ वेरी हेल्पफुल कि हमारा जो कैपिटल है हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है तो हर डिपार्टमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ फंड रखना ज़रूरी है, कुछ रिजर्व रखना ज़रूरी है। तो आपका अलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए। तो दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ कैपिटल। विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल और विद द some points of theory of capital, you can allocate your resources or capital in a proper ratio and you can manage your capital so that your working of the organization will flow smoothly and will go run in very smoothly. Next one is economic development. All these points belongs to why, because we want to develop our economy. यदि ये सारे प्रॉपर डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, प्रॉफिट ये सारा होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन विल इंक्रीज, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो हमारा इकोनॉमिक ऑटोमेटिक ही डेवलप होता है। यदि कोई कंट्री अपना डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए खुद ही कैपेबल है तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट कोई भी कंपनी के लिए नहीं होगा। इट विल बी वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर द any country if they are able to satisfy the demand of a product or services in the same country, because it leads to increase in the GDP rate, and GDP rate increases which directly develop our economy. Okay, next one is social environment. Social environment is nothing but it deals with the social factor, that is societal factor, because no one can लिव इन द आइसोलेशन। मैं हर बार ये बोलती हूँ कि कोई भी पर्सन एक अकेला अपना ज़िंदगी नहीं जी सकता है, खुद ही डिमांड करे और खुद ही सप्लाई करे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो सोशल एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए भी, मार्केट में बैलेंस रखने के लिए, डिमांड और सप्लाई का एवरीथिंग, सारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारा मैनेज करने के लिए हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट आवर सोशल एनवायरनमेंट विल बी डेवलप। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब काफ़ी सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है किसी भी कंपनी के लिए, कि बाबा यदि आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो यू हैव टू रजिस्टर इन द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, or if you want to start an LLP you have to register LLP Act. If you want to make one trust you have to register into the Trust Act, or if you are trying to opening a bank you have to register into the Banking Regulation Act 1949. तो ये सारे क्या है, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट ने बिजनेस करने के लिए हमारे कंट्री में इम्पोर्ट किए हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू follow this political point and they have to follow the rules and regulation made by the government compulsorily. This political environment, अभी क्या होता है बहुत सी बार, जैसे कोई इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पार्टीज़ को फंड लगता है, तो फंड लग रहा है तो दे आर डेफिनेटली विल गो टू द अपर लेवल क्लास, जो बड़े बड़े कंपनीज़ है, अंबानीज़ है, अडानीज़ है, दे विल गो टू दैट और वो उन्हीं से फंडिंग लेते हैं। तो ये जो फंडिंग करेगा पार्टी विल सपोर्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये सारी चीज़ें होती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। सपोर्ट करना किसी पॉलिटिकल पार्टी का आपके कंपनी को या आपके ट्रस्ट को, आपके बिजनेस को, इट प्लेज अ मेजर रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी कंपनी। ओके, सो हियर वी हैव सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर two points in the scope of managerial economics. First one is microeconomics and second one is microeconomics. Currently in the current lecture we have seen theory of demand, theory of production and production decision, pricing theory, profit analysis, theory of capital, economic development, social and political environment. ये chart, please it is a request to all the student to draw this chart because it is very helpful in the examination. Also during examination it is very easy to write the points and to develop your answer. Okay, now second point, that is macroeconomic. See, I am writing these points over here.
because we don't have the space over here. I'll write this point here. Okay. Second point is macroeconomics. In that we have economic environment. Second one is social environment, and third one is political environment. Political environment. Okay. Macroeconomics is nothing but it works on the national level or it works on the wide level. माइक्रो मीन्स एक छोटे पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप के लिए होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक होता है वाइड लेवल पर, दैट इज़ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर. इसमें ज़्यादातर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ये सारे इफेक्ट्स करते हैं. इन दैट वी विल सी फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. Economic environment. The economic condition of the country. See, I told you that it works on the national level. तो first point इसमें आया है हमारा economic condition of country. GDP, that is gross domestic product. Second, economic policies etc. indirectly impacts on the business and its operation. ये economic environment means होता है हमारे जो social हमारे बिजनेस पॉलिसीज़ होते हैं इंडिया के या कंट्री के, हमारे कोई भी नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज़ एंड प्लान्स बनते हैं, ये सारे इफ़ेक्ट किस पे करते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट्स. ओके. सेकेंड पॉइंट इज सोशल एनवायरनमेंट. द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑल्सो अफेक्ट्स इट लाइक्स एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ट्रेड यूनियंस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा. अब इसमें क्या होता है आपका, देखिए, सोशल एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ पर भी जिस भी कंडीशन में एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी क्या कर रही है, रन कर रही है. जैसे कोई कंपनी है जो पर्टिकुलर रीजन में अपना ऑपरेशंस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो कंपनी, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप समथिंग एंड शुड डू सम पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर दैट पर्टिकुलर social environment also. Okay, so it is very compulsory for any organization. It affects very widely. For example, आपका जो political environment है उस particular region के लिए, तो लेबर है, ट्रेड्स ऑफ है, ये सारे क्या होते हैं, इस पर इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. The political structure of the country, whether authorization or democratic, political stability and attitude towards the private sector influencing the organization growth and development. Okay, अभी political factors में जितना भी हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज़ नथिंग बट द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसमें सारी सत्ता जनता चलाती है, जनता की सरकार होती है. तो जैसे ही बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट चेंज हुए तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं. हमारा जो परचेसिंग पावर ऑफ द मनी है वो भी चेंज होता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द रूपी इंक्रीज एंड डिक्रीज आफ्टर चेंजिंग द गवर्नमेंट. सडनली ऑल ऑफ सडन क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट्स जो होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो होते हैं, या कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट जब आती है तो काफ़ी सारे फॉरेन प्रोजेक्ट्स आपके सैंक्शन करते, और जैसे ही आपके फॉरेन प्रोजेक्ट्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट सैंक्शन होता है, इट ऑल ऑफ सडन इंक्रीजेज द GDP रेट very drastically. Okay, so political environment also affects the countries or national GDP. Okay, now again we will revise this points, that is scope of managerial economics. In that first one we have microeconomics and second one macroeconomics. These are the basic two diversification of scope. Everyone listen it. These are the basic diversification of scope. In that we have 8 points in microeconomics and 3 points in macroeconomics. Total we have 11 points. Total how much points we have? 11 points. And macroeconomics consists of economic environment, social environment and political environment.
Okay, hope all the students understand it very carefully. If anybody have any queries, please share in the comment box. I will definitely try to solve your query. Thank you.